आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया। 100 करोड़ से अधिक के नॉन ट्रांसपेरेंट घोटाले के ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कैश ट्रेल। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी, शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया। 100 करोड़ से अधिक के नॉन ट्रांसपेरेंट घोटाले के ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कैश ट्रेल। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी, शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। So after 12 hours of interrogation, ED early morning has arrested former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. Republic was live non-stop. This happened a little over 1 a.m. and this is in relation to the PMLA case lodged against him. Well, also as part of the probe into the alleged extortion, before arresting Anil Deshmukh, the agency had conducted multiple raids at the premises linked with him in Mumbai as well as in Nagpur. But yes, he's been arrested as per sources under Section 19 of the PMLA Act, and sources also adding that Anil Deshmukh was not cooperating and was being evasive in his replies to the agency. We also have BJP's Ram Kadam joining us on the phone line early this morning. Good morning to you, Mr. Kadam. What do you make of this development? After having been interrogated for over 12 hours, this development took place a little over 1 a.m. this morning, but sources telling us that he was not being cooperative and was evading all those questions being asked by the agency. First of all, let me tell you, this battle is not against any individual. This battle is against corruption. And ED had summoned 6 times. After that also, ex-Home Minister did not attend ED office. But finally, after rejection from High Court and Supreme Court, he was compelled to attend ED office. यहाँ पे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये तो 100 करोड़ की एक महीने की केवल मात्र मुंबई से उगाही। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 6000 करोड़ 5 साल के होते हैं। तो एक डिपार्टमेंट में से मुंबई से 6000 करोड़, तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो हाउ मच एक्सटॉर्शन, कितने बड़े पैमाने पे एक्सटॉर्शन हो रहा था हम समझ सकते हैं। अब इस बात की जांच आवश्यक है कि ये पैसे के साझेदार कौन है, हिस्सेदार कौन है, इसके आका कौन है अनिल देशमुख जी के। वे आकाओं के नाम भी सामने आएंगे और उनको भी जेल की सलाहों के पीछे जाना होगा। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जिन लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी को उनका कोई गुनाह न होते हुए उनको जेल में डालने का दुस्साहस किया, आज वही लोग या तो मारे मारे वांटेड करके घूम रहे हैं या कुछ लोग जेल के सलाहों के पीछे हैं। यानी अंत में सत्य का विजय होता है, ट्रूथ विल प्रिवेल। उस प्रकार से सत्य का विजय हुआ है। अब अनिल देशमुख जी के आका कौन और महीने के 100 करोड़ वसूली के कौन कौन हिस्सेदार, उनके नाम सामने आना बाकी। जी, क्योंकि बाकी अक्यूज जो केस में थे उनके स्टेटमेंट के बिहाफ पे भी ये इंटेरोगेशन किया गया था। Ram Kadam ji, now, given the developments, what do you make of what lies ahead? Already we know how the probe is on against Sachin Waze. Now, after having arrested Anil Deshmukh, what about Parambir Singh? He's the third player that is being talked about because he too has failed to appear before the commission on multiple occasions. He's absconding, reports suggesting he's perhaps in Belgium. That was a reaction that came in from a Congress leader himself. How soon can we expect that? That's another important... As I told you, see, there were 2 people behind Arnab's arrest. One is Mumbai Police Commissioner and one is Home Minister, and one person who came to Arnab's home, that was Waze. Half of them are behind bars and one of them is wanted. Now, सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि
ठीक है, हम किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध में हम बात नहीं करेंगे कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, पर जिस प्रकार से जिस दिन से ये तीनों दलों की सरकार आई है, फिर कोई भी मामला ले लीजिए आप, अभी जो 1 महीने से ड्रग का मामला चल रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? They have been trying to shielding, protecting drug peddlers. What is the reason? यार कहीं पर भी जहां से वसूली वसूली वसूली, इसके आगे ये तीनों दल आगे बढ़ते ही नहीं है। पर किसी को भी न्याय व्यवस्था को सहयोग करना होगा और न्याय व्यवस्था को सहयोग करके, जांच एजेंसियों को सहयोग करके इन पैसों के हिस्सेदार कौन है, एक कीड़ा कटा तीनों में बटा, तो तीनों में किन किन नेताओं में बटा, उनके नाम सामने आने होंगे और उन नेताओं को भी, चाहे कितने भी बड़े हो, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। धन्यवाद राम कदम जी हमसे बात करने के लिए। दैट वाज